شہر عرب بولتا ہے، شہر عجم بولتا ہے، محمد کا کلمہ سلم بولتا ہے۔ آپ بھی بولیں گے ضرور، محمد کا کلمہ سلم بولتا ہے، اور نبی کی غلامی ہے معراج ایمان۔ ابھی آپ نے سنا نا اعلیٰ حضرت کا کلام، نبی کی غلامی، یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے، نبی کی غلامی ہے معراج ایمان، یہ احمد رضا کا قلم بولتا ہے۔ نبی کی غلامی ہے معراج ایمان، یہ احمد رضا کا قلم بولتا ہے۔ اور ایک شعر، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر بات سچی ہے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اور مستی میں کہہ دیجئے یا حبیب اللہ۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وسیلہ خدا کی قسم بولتا ہے، وسیلہ خدا کی قسم بولتا ہے۔ اب آئیے یہاں سے چند باتیں آپ حضرات کی اچھی سماعتوں کے دہلیز پہ یہ فقیر قادری رکھنا چاہتا ہے۔ تقریر آپ یوٹیوب کے ذریعے سنیے، مجھے محلہ میں سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سننا ہی ہے، ابھی بہت سارے ورلڈ چینل نکلے ہوئے ہیں، اس سے سنیے گا، اس لیے کہ میں بھی اس دیار کا ہوں۔ آج موہن پور کا ہر ایک بچہ جو ہے جسے کسی چیز کی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک بچہ جو ہے پڑھا لکھا ہے، ہر چیز پہ انگلی اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج اگر امام نماز پڑھا رہے ہیں، مقتدی انگلی اٹھا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر امام نماز پڑھا رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی انگلی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امام اگر صحیح قدم پانے میں چل رہے ہیں تو ہم اس کے پیچھے بھی چل رہے ہیں۔ یہ حالات ہے موہن پور کا، مگر یاد رکھنا، دل تھام کے چند باتیں آپ کی اچھی سماعتوں کے دہلیز پہ رکھنے کی جسارت کرتا ہوں۔ محبتوں کے ساتھ، دل چوری کے ساتھ سننا، ہم اس عالی امام عالی مقام کے ماننے والے ہیں جس امام پاک نے اپنا تن من دھن سب کچھ کربلا کے میدان میں لٹا کے نماز جیسی عظیم ترین عبادت کو بچایا ہے، قرآن جیسی عظیم ترین کتاب کو کہیں اور نہیں بلکہ کربلا میں دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے۔ اے لوگوں یاد رکھنا، اگر امام پاک نے سب کچھ لٹا کے مذہب اسلام کو بچایا ہے، اگر مذہب اسلام کے اوپر اگر آجا دے، اگر جان دینی پڑے تو دے دینا، اگر اہل اولاد کی قربانی پیش کرنی ہو تو قربانی پیش کر دینا، اگر بچے کی قربانی پیش کرنی ہو تو قربانی کر دینا، مگر مذہب اسلام کو جھکنے نہیں دینا، اس لیے کہ یہ اسلام ایسے ویسے پہلو نہیں ہے، قربان چاہیے، اس لیے کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن ایسا نہیں، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن، اور انکار کرنے والا میرے نبی کا شیطان تھا، شیطان ہے، شیطان پورا مجمع محبتوں کے ساتھ بولے شیطان تھا، شیطان ہے، شیطان۔ اب آئیے غریب نواز میرے امام پاک کو دیکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ غریب نواز نے کہا تھا، قاری صاحب، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین۔ یہ کس نے کہا تھا؟ غریب نواز نے کہا تھا۔ کس کو دیکھنے کے بعد؟ کس کو دیکھنے کے بعد؟ امام پاک کو دیکھنے کے بعد۔ معلوم ہے تب کسی نے غریب نواز کی بارگاہ میں التجا کی تھی، غریب نواز آپ فرمائیے شاہ ہست حسین، بات ٹھیک ہے، بادشاہ ہست حسین، یہ بھی معاملہ ٹھیک ہے، دین ہست حسین، یہ بات سمجھ میں آئی، دین پناہ ہست حسین، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی یہ منصوبہ دو، آدمی یہ منزل دو، امام دین بھی ہے، دین کی پناہ بھی ہے، معاملہ سمجھ میں نہیں آئی تو عالم تصور میں غریب نواز فرماتے ہیں نادان، جاننا چاہتے ہو جب امام پاک مصطفیٰ کے کندھے پہ تھے تو دین تھے، مصطفیٰ کے گود میں تھے تو دین تھے، فاطمہ کی آنچل میں تھے تو دین تھے، مولا علی کے کندھے میں تھے تو دین تھے، مدینے میں تھے تو دین تھے، کربلا کے میدان میں گئے تو دین تھے، عسکر کو لٹا دیا
बोल दीजिए या हबीब अल्लाह, हाथ उठा के कह दीजिए या हुसैन, और मस्ती में कहिए या हुसैन। ऐसे नहीं, मोहब्बतों के साथ या हुसैन। मालूम है वो हुसैन जिसे मेरे नबी ने अपने गोद में बैठा, वो हुसैन जिसके सारे सेबा को मुस्तफा ने बार बार बोसा दिया, वो हुसैन जिनको सज्जदा, तज्जबा, ताहिरा, साहिदा, साकिया, खातूने जन्नत ने खुद भूखा रह के निवाला खिलाया, वो हुसैन। वो हुसैन जिनके लिए जन्नत से खाना आवे, जिनके लिए जन्नत से लिबास आवे, वो हुसैन जिनके लिए खाना जन्नत से आवे, वो हुसैन। खुदा की कसम, करबला के मैदान में इमाम पाक मोहताज नहीं थे बल्कि मुख्तार थे। दुनिया वालों को ये पैगाम मेरे गरीब नवाज ने बता दिया कि इमाम पाक पानी के प्यासे नहीं थे, इसलिए कि जानते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नन्हे शेर खार बच्चे जिसे दुनिया हजरत इस्माइल जबीहुल्लाह के नाम से जानती पहचानती है। जब हजरत हाजरा ने सफा मरवा का चक्कर लगाया, हजरत इब्राहिम को छोड़ा, अल्लाह अकबर कबीरा, नन्हे शेर खार बच्चे थे, भूख और प्यास के मारे तड़प रहे थे, तिलक रहे थे, अल्लाह अकबर कबीरा। इधर हजरत जिब्रील आए, पाँव में जमीन में ठोकर लगाए, कुर्बान चाहिए आपका कदम नाम। जैसे ही जमीन पे पड़ी तो कोई और नहीं, जमीन ने अपना रास्ता, अपना सीना चीर दिया और दुनिया वालों को ये अता कर दिया जिस पानी का नाम है समसम। मोहब्बत से बोल दो ना यार, जिस पानी का नाम क्या है? समसम। कौन लगाए ठोकर? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल। एड़ी मारे जमीन पे, जमीन ने अपना रास्ता, अपना सीना चीर दिया। कयामत तक वो पानी हम सब पीते रहे, वो पानी। मगर अल्लाह अकबर कबीरा, आज भी नहरे फुरात है, आज भी नहरे फुरात मौजूद है प्यारे। दिलजोई के साथ सुनना, इमाम पाक पानी के लिए प्यासे नहीं थे बल्कि होठे हुसैन के लिए नहरे फुरात तरस गया। और नहरे फुरात ने आवाज दिया था कि काश मुझे होटल का होठ मिल जाता, काश अली अकबर की प्यास के लिए मैं चला जाता। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान चाहिए। इमाम पाक मोहताज नहीं थे बल्कि मुख्तार थे। एक नहीं, दो नहीं, अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करके मजहब इस्लाम को बचा। सही, इसलिए कि आज कौन सा तारीख है मालूम है? कौन सा तारीख है? अरे बोलिए ना, मुहर्रम का कौन सा तारीख है जी? कौन सा तारीख है? अरे जोर से बोलिए ना यार। कितनी तारीख है? 8वीं तारीख। मालूम है इमाम पाक ने 8वीं तारीख को क्या किया था? आज हमारा बाप गुजर जाए, भाई गुजर जाए, चचा गुजर जाए तो हम रोना धोना, सीना पीटना शुरू कर देते। मगर कुर्बान चाहिए, इमाम पाक ने करबला के मैदान में तमाम शहीदों को इकट्ठा करके कोई और नहीं बल्कि कुरान पाक अजीम तरीन किताब पढ़ना शुरू कर दी। आज क्या है, मुहर्रम का महीना जब जब आवे तो हम कुरान नहीं पढ़ते, न घर में पढ़ाते हैं बच्चे को, न पढ़ते हैं खुद। मामला क्या रहता है? अजीबो गरीब मामला रहता है। आज मिलादे पाक में आप आए हैं, आप आए नहीं बल्कि इमाम पाक आपको यहाँ बुलाते हैं। ये मेरा ईमान, अकीदा, भरोसा ये है प्यारे, इसलिए कि मेरा भरोसा ये है कि जिसका जिक्र हम जहाँ भी खड़े होके करते हैं, मेरा ईमान ये कहता है, मेरा ईकान ये कहता है, मेरा जुस्तान ये कहता है इमाम पाक का जिक्र कर रहे हैं। तो याद रखना, इस मजलिस में कोई देखे या ना देखे, इमाम पाक हमें और आपको देखते हैं, इसलिए कि हम जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है, जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है। बोल दो ना यार, जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है, उम्मत है। मुझे मालूम है भूख की शिद्दत है, वक्त कम है ना, भूख की शिद्दत है, मगर याद रखिए 3 दिन तक इमाम पाक के ऊपर पानी बंद किया।
एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितना दिन? 3 दिन तक पानी बिल्कुल बंद। मगर कुर्बान जाई, कयामत तक के लिए हम जैसे गुलामों का इंतजाम करके चले। आज ये नन्हे अली असगर का सदका है जो हम पानी पी रहे हैं। और बोल दो ना यार, बोल दो ना यार। तड़पती हुई अब्बास अलंबरदार ने अपने बाजू को कटा के दुनिया वालों को पानी अता कर दिया कि गुलामों घबराना नहीं, ऐ नाना के चाहने वालों घबराना नहीं, ये देखना पानी उठाना, देख लेना तुम्हें कोई याद आवे या ना आवे, करबला जरूर याद आया। मालूम है बीमार जैनुल आबिदीन ने जब तक जिंदगी, जब तक दुनिया में रहे, पानी देखते थे तो रोना शुरू कर दिया। कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है। आज क्या है, हम आसानी से। और एक आखिरी वाकया सुनिए फिर खत्म, इसलिए कि मौलाना शमीम साहब कल गालिबन तकरीर किए होंगे, है ना, परसों भी है, लगातार है। हम लोग कभी कभी मिल जाते हैं, है? नहीं, कल भद्रक में, भद्रक में बहुत मार, ऐसा थोड़ी ना। अल्लाह का करम है, आप लोगों की जैसे बड़ों छोटों की दुआएं हैं जो मुहर्रम की 1 तारीख से लेके गालिबन 18 तारीख तक एक भी दिन खाली नहीं। डेली जिक्र हो रहा। किसका हो रहा है? इमाम पाक का हो। मालूम है इमाम पाक का वो नाम है, इमाम पाक फरमाते हैं मेरा नाम आसानी से कोई नहीं लेता, जिसे मैं चाह लेता हूँ वही मेरा नाम अपने होठों पे लूं। बस से बोल दो ना या हुसैन। ऐसे नहीं हाथ उठा के बोलो या हुसैन, ऐसे नहीं मस्ती में बोलो या हुसैन, या हुसैन। आपने हाथ उठाया है, याद रखना, किसी दुनियादार, किसी नेता, किसी लीडर के नाम पे हाथ नहीं उठाया है। ये हाथ उठाया अगर है तो इमाम पाक के नाम पे हाथ उठाया। याद रखना, कयामत तक याद रखना, जो हाथ आले पैगंबर के नाम पे उठता है, जो हाथ मेरे आका के नाम पे उठता है, वो हाथ में कभी बीमारी नहीं होता है, वो हाथ में कभी कोई बीमारी नहीं। इसलिए मेरे नबी का अगर आप नाम लोगे, नवासाए रसूल का अगर नाम लोगे, तो याद रखना तुम्हारा जुबान बावजू होते हुए। इसलिए हम वक्त जब 1 तारीख मुहर्रम शरीफ का आए तो हमेशा हुसैन को याद कर लेना। एक दिन नहीं, पूरा महीना याद कर लेना, ताकि याद से क्या फायदा है। मालूम है अगर करबला पूरा अगर आपके दरमियान बयान किया जाए तो लोग खाना पीना छोड़ देंगे, पानी पीना छोड़ देंगे। इसलिए करबला सुनने के लिए जिगर चाहिए। कैसा जिगर? ऐसा जिगर जिस जिगर में अब्बास अलंबरदार का तीर लगा था। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बाजू कट गए मगर दुनिया वालों को पैगाम देते गए कि गुलामों, मेरे नाना के चाहने वालों, याद रखना कयामत की सुबह तक याद रखना मेरे बाबा का नाम हमेशा ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। इसलिए कि हर इमाम कहीं और जगह नहीं बल्कि मस्जिद के मेंबर में मुझे याद करते हुए। इसलिए कि आज भी हम इमाम पाक का खुतबा कहीं और नहीं बल्कि मस्जिद का इमाम पढ़ता हुआ नजर आता है। किसका खुतबा? इमाम पाक ने जो आखिरी खुतबा दिया। वक्त नहीं है, अब आखिरी बात माजरत चाहते हैं, इसलिए कि वक्त कम है, इशारा कर रहे हैं, इसलिए कि जरूरी है। हाँ, कल भी प्रोग्राम है और सुन लीजिए, कल बहुत बड़े आदमी दीना इंशाअल्लाह ताला आप लोग आए सुने तक, इसलिए कि ये जरूरी है, जानना भी है। इसलिए कि मोहनपुर वालों को तो हम इल्तिमास गुजारिश नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि यहाँ तो एक से एक बड़े बड़े मुफ्ती है, यहाँ मुफ्तियों की कमी नहीं है। बगैर पढ़े लिखे डिग्री, बगैर पढ़े लिखे का सब में यहाँ डिग्री मिल जाएगी। बगैर पढ़े लिखे आपको डायरेक्ट बोलेंगे आपका क्या सर्टिफिकेट है, आप क्या जवाब दीजिए? है आपके पास कोई जवाब? मगर मेरे मोहनपुर के पास कहीं से भी जवाब मिल जाए, हाँ ये सर्टिफिकेट है, ये हकीकत बात है। इसलिए कि हकीकत छुप नहीं सकती। मौलाना शमीम साहब, बनावट के वसूलों से खुशबू आ ही नहीं सकती कागज के फूलों से, इसलिए कि हकीकत है। मगर हर चीज में मोहनपुर वाले आगे हैं, नमाज में ही पीछे।
है ना। बिरयानी अगर 10 डेग बोलिए सब रेडी है, एकदम तुरंत बनाएंगे, चढ़ाएंगे, जो होगा देखा जाए, जरूरत पड़ा मार पीट सब हो जाए, है ना। मगर क्या है, नमाज के लिए बोले तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा पेट में दर्द है, पेस्टिक की बीमारी है, पाँव में लकवा मार दिया, इतना बीमारी जो आपका साथ खानदान तबाह हो जाएगा गिनाते गिनाते। ये हाँ, मस्जिद के लिए आने बोले हजरत टाइम नहीं है, क्या गलत बोले मौलाना सलीम साहब? इतना दिन नमाज पढ़े, हम भी देख रहे हैं ना, हम भी खुद एक मस्जिद के जिम्मेदार इमाम है, इसलिए कि इमाम को मालूम है इस दौर में इमामत करना लोहे के चने चबाना बराबर। हाँ, लोहे के चने चबाना जैसे बराबर। इसलिए कि इमाम साहब कहेंगे कि हजरत आपका पूरा जो है ना उंगली नहीं सटा। एक बेवकूफ ने हमको भी कहा था इस मस्जिद में जब नमाज पढ़ाए, बोले सब उंगली सटेगा तभी नमाज होगा वरना नहीं होगा। ले तेरा फतवा दे दी, बेगर पढ़े लिख के फतवा। नहीं, आखिरी फतवा सुनिए, इतना आसानी से थोड़ी ना हम छोड़ देंगे। क्या दिया फतवा? बोले सब उंगली सटना चाहिए तब जाके नमाज होगी वरना नमाज नहीं होगी। ऐसा कोई मामला बोलो ना यार, नहीं है। एक उंगली अगर सट जाए तो नमाज भी हो जाएगी। एक उंगली अगर सट जाए, अगर आपको देखनी है, तहकीकात करनी है तो आप बुखारी शरीफ की हदीस पाक पढ़ो, मगर 3 उंगली सटाना जरूर मुस्तहब। मगर एक उंगली अगर है, किसी का अगर तकलीफ भी है तो उससे नमाज हो जाएगी। नहीं देखते हैं, अगर नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हैं तो नबी फरमाते हैं बैठ के पढ़ो। अगर बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ो। अगर लेट के नहीं पढ़ सकते हो तो मुसलमानों इशारे से पढ़ो, इससे पढ़ो, इशारे से पढ़ो। नमाज किसी के ऊपर माफ नहीं है। और हुसैन पाक ने करबला के मैदान में अपना तन को जुदा किया है किस हालत में? नमाज की हालत में। और जोर से बोलो ना यार, इस हालत में, नमाज की हालत में। तो इंशाअल्लाह हम लोग नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा के कहिए इंशाअल्लाह। कल से मस्जिद आएंगे इंशाअल्लाह। रफ़े कदीर की बारगाह में दुआ गो है पाक परवरदिगार आलम, मैंने जो कुरान करीम की तिलावत का सर्फ हासिल किया, वकुनु मा सादिकी, ईमान वालों सच्चों के साथ में, और इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक सब्र वालों के साथ। कोई रहे या ना रहे ये याद रखना, उसके साथ अगर सब छोड़ दे तो अल्लाह अकबर कबीरा। कोई रहे या ना रहे अल्लाह पाक उसकी रहनुमाई करता हो। बेकदीर की बारगाह में दुआ गो है पाक परवरदिगार आलम, सुनने से ज्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे नहीं, बुलंद आवाज से पढ़िए ताकि इस मजलिस से आपको ये पैगाम मिले, कोई देखे या ना देखे मेरे नबी हमको देख रहे। नबी को हाजिर और नाजिर रख के इस्तगफार पढ़ ले ताकि हो सके कि कल मैदान महशर में इसी मिलादे पाक के सदके में आपकी बख्शाई हो। पढ़ लीजिए मोहब्बतों के साथ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु अलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते, वो मोहब्बत तो घराने देखे नहीं जाते। हमें महसूस करो ऐ ज़माने वालों, हम फकीरों के खजाने देखे नहीं जाते।